साथ परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। कितने जन खुश हैं आज, आनंदित हैं आज आप बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़ी गवाहियों को आप लेके वापस जाएंगे। हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। जितने भी जन इस समय चर्च ब्रांचेस में हैं, आप बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। और जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं फॉरेन से, विदेश से, आपने भी ध्यान से इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, इनको आशीषित किया, इनकी लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया, गवाहियों के साथ खड़ा किया। जब आप सुनेंगे तो विश्वास पैदा होगा और परमेश्वर आपके जिंदगी में भी आपको बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करेगा। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करते हुए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मनप्रीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर से। पिछले 2 साल से लगातार आपके ऊपर अटैक हो रहे थे दुष्ट आत्मा के। हाँ जी ब्रदर। आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या चीजें आपके साथ होती थी उस वक्त? ब्रदर ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਵਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡੈ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ। और इन्हीं चीजों के कारण आप डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी ब्रदर। हर समय आपके मन में मरने के ख्यालात चलते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या चीजें होती थी, क्यों मरना चाहते थे? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਜੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में डिलीवरेंस दी, कैसे आप आजाद हुए? फिर ब्रदर मैं ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਏ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਮਟਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੁਰਪਰ ਤੇ। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय आपको क्या महसूस कर पा रहे थे, क्या हो रहा था आपको उस समय? उस समय ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। तारीफ करें परमेश्वर की। उस ले हैंड की प्रेयर को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहले तुम फ्री होगी इन जीसस नेम। जय टेक। कहां से आई? हाँ, Holy Ghost fire on you। खड़ा करो इसको यहीं पे। और उसके बाद इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने जब ऑफिस में ले जाकर आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी अलग से, तो उसके बाद बताएं आपकी लाइफ अभी कैसी है? उसके बाद ब्रदर मैं बिल्कुल साफ और पवित्रताई में चल रही हूं। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ
ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैं बिल्कुल हील उस दिना तो। और जैसे ही इनके ऊपर ऑफिस में जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी, उसके बाद जैसे ही ऑफिस से बाहर आए तो हम टीम जब वहां बाहर खड़े थे तो इनसे पूछा गया था कि ले हैंड के बाद कैसी हालत है। उसी टाइम इनका वीडियो भी एक रिकॉर्ड हुआ था, उस वीडियो को हम स्क्रीन पे देखेंगे पहले। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਾ ਚਾਲਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ सब जन जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आप बहन खुद बताएं, अभी उसके बाद अभी हालत कैसी है? अभी फिर मैं बहुत वधिया, मैं प्रे विच भी बहुत वध चुकी हां, फास्टिंग च भी बहुत वध चुकी हां। जिस तरह मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मैनू वर्ड ते दुनिया दी किते भी जगह ते चल जाओ, तानू खामड़े वर्गी जगह किते नहीं मिलनी। मैं स्पिरिचुअल फादर वर्गे तानू फादर किते नहीं मिलने। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तानू खामड़े दे विच मिलूगा रियल मैन ऑफ गॉड। तारीफ करें ऊंची आवाज में इक्लेसिया हालेलुया बोलते हैं। चर्च ब्रांचेस ऑल ओवर यूनिवर्स उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करते जाए हर एक सर। इस ब्रदर का नाम शमशेर है और ये अमृतसर से हैं। 3.5 महीने पहले ये भाई एक दिन अपने दोस्तों के साथ शाम के समय में सैर कर रहे थे। भाई आप बताएं, जब आप अपने दोस्तों के साथ वॉक कर रहे थे, सैर कर रहे थे, तो क्या हुआ? मैं सैर करने के लिए गया तो इवनिंग में, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ ही थे। तो जब मैं वापस आ रहे थे तो अचानक यहाँ पहले भी एक्सीडेंट होते थे, तो वहाँ मैं आकर ऐसे ही मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गया और गिर गया चक्कर आके। तो मेरे दोस्त तो आगे चले गए, तो उसने देखा कि मेरा दोस्त पीछे पड़ा हुआ है, तो उसने भागकर मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं बेहोश था। तो जब उन्होंने मुझे किसी ऑटो रिक्शा पे लेकर डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने कहा कि इनको मतलब एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट मुझे करवा दिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया और एक्सरे करवाया। जब देखा कि इनकी हड्डी क्रैक हो चुकी है राइट लेग की, तो उन्होंने मेरे को वहाँ फिर दोबारा जो है एक्सरे किया, तो देखा कि इनका जो है अभी ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने रॉड सिलेक्शन किया, तो बाद में मुझे ऑपरेट किया और ऑपरेट करके मुझे रॉड डाल दिया। तो बाद में मैं 22 डेज़ जो है वो मैंने मतलब हॉस्पिटल में रहा। बाद में मैंने फिर वो बेड पर ही सब कुछ होता था, तो ज़्यादातर मैं बेड पे ही रहता था। फिर मैंने वॉकर से स्टार्ट किया चलना, तो वो भी बाद में फिर बोले कि मतलब थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ, तो मैं छड़ी से चल रहा था। तो 20 डे के बाद मैं घर आ गया। तो घर आके मुझे फिर उन्होंने मेडिसिन दे दिया, बोले कि आपको 2-4 महीने अभी को खानी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर मैंने दवाई खाना शुरू किया। तो धीरे धीरे फिर मैंने परमेश्वर के घर में भी आना शुरू कर दिया।
और भाई तो मैं- उस समय जब आपने सहारा लेकर चलते थे, अब बिना सहारे के नहीं चल पा रहे थे आप, हाँ जी। कोशिश कर रहे थे मगर नहीं चल पा रहे, आपको चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ ब्रदर जी। और ये भाई साथ में ही परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, लगातार अमृतसर ब्रांच में जाकर मीटिंग को अटेंड करते रहे। और 12 नवंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के वर्ड को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया। बीमारी आउट, बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रांचेस में बीमार शरीरों को प्रभु तेरा आत्मा छुए और बीमारी छोड़ के जाती रहे होली गोस्ट फायर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ बीमारी छोड़ के जाती रहे होली गोस्ट फायर। और भाई जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की, आपने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, क्या महसूस किया उसी समय फिर आपने? तभी मैंने आपको रिलीफ महसूस किया और फिर उसके बाद जो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आया और मैं छड़ी छोड़कर फिर मैं चलने लग गया, खुद चलना शुरू कर दिया। हाँ जी, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, किसी सहारे की। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं। हाँ जी, एक कदम से प्रॉपर खुद चलते हैं। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च इस गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए चर्च, आप भाई आप चल कर दिखाएं, आप चलिए आप जहां जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन ब्रांचेस में है, चर्च में है, जहां भी, अपने हाथों को उठाते हुए इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगियाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप उस भाई को दौड़ते हुए देख रहे हैं जो बिना सहारे के नहीं चल पा रहे थे, एक्सीडेंट के बाद बेड पर चले गए थे, इलाज चल रहा था मगर बहुत दुखी थे, परेशान थे। पर जब खुदा की हजूरी में बने रहे, प्रार्थना को ग्रहण किया, खुदा ने छुआ और परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ प्रदान की कि एक कदम से बिना सहारे के, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, खुद चल पाते हैं और उस दिन से ये प्रॉपर हील है। सब धन्यवाद है, थैंक्स करें सब जन, सब तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाते हुए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही वेस्ट बंगाल ब्रांच से है और इस भाई का नाम कृष्णा देवनाथ है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सबको जय मसीह की। इस भाई का कृष्णा देवनाथ, ये भाई मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही दे रहे हैं। इस भाई का 7 साल पहले अस्थमा का भयानक रोग हो गया था, जिस वजह से ये भाई 2 कदम चलती थी तो इनका सांस फूलता था, खींच खींच के सांस लेती थी। ये भाई रात में जब सोती थी तो इनका सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, मुंह फूल से सांस लेती थी। ये भाई डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दिया और पाम भी यूज करने को बोला। ये भाई मेडिसिन खाया, पाम भी यूज किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। डे बाय डे ये भाई का हालत खराब से खराब ही हो रही थी। ये भाई सीढ़ी से नहीं चल पाती थी और भारी सामान उठाने में बहुत तकलीफ होती थी, भारी सामान नहीं उठा पाती थी, जिस वजह से ये भाई का काम भी छूट गया था। ये भाई हालत ऐसा खराब हो रही थी, इन्होंने घर में हर टाइम रहता था। इनका वाइफ ने काम बाहर का काम करती थी। ये भाई ऐसा हालत खराब हो रही थी, इन्होंने सेकंड डॉक्टर के पास गई। सेकंड डॉक्टर ने इनको दिन में 2 बार हाई पावर की इंजेक्शन देते थे और न्यूमोलाइजर देते थे और पाम भी यूज किया करते थे, पर इनका शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ा। डे बाय डे इनका हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। ये भाई 12 डॉक्टर चेंज किए, 8 साल से मेडिसिन खा रही है और न्यूमोलाइजर भी यूज किया, दिन में 2 बार पाम भी यूज किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये भाई रात में सोने के टाइम ऐसा, ये भाई का हालत ऐसा खराब हुआ था, इनको हॉस्पिटल एडमिट करने पड़ा। ये भाई हॉस्पिटल एडमिट हुआ, फिर डॉक्टर ने इनको ऑक्सीजन दिया और ग्लूकोज चढ़ा दिया था, तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। डे बाय डे ये भाई का हालत वीक हो रही थी। इन्होंने ज्यादातर घर में रहती थी, बहुत पैसा भी खर्चा किया। इनका वाइफ ने उधार मांग के इनका इलाज के पीछे पैसा खर्चा किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके सुसमाचार के दौरान ये भाई को अंकुर नूरा मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। इन्होंने लगातार मेदिनीपुर ब्रांच से जुड़ती गई। फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने
प्रेयर किया, ये भाई पूरी फेथ के साथ रिसीव किया। जैसे रिसीव किया, इनका शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। उसी दिन से ये भाई चेक कर रही है, उठ बैठ पा रही है, दौड़ पा रही है, पूरी हील हो गया। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और फिर 19 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने जैसे ही उस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्होंने जब अपने आप को चेक करके देखा तो ये प्रॉपर चल फिर पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है, उन्हें चंगा कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। तो अपने हाथों को उठाएं, जितने लोग ब्रांचेस में मौजूद है अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर का ही हूँ। पिछले 30 साल से आपके परिवार में हर एक व्यक्ति नशे करता था। हाँ जी ब्रदर। आप खुद बताएं कौन कौन आपके परिवार में नशे करता था? ब्रदर मेरे दो बड़े भरा ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, दारू ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, दारू ਨਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ नशा करना शुरू कर देता, बियर दा दारू पीनी शुरू कर देती ब्रदर जी। और आप 3 भाई थे टोटल? और हाँ जी, 2 दी मेरे तो जड़े बड़े सीगे उन्हां दी डेथ हो चुकी ब्रदर। और उसका कारण था नशा? हाँ जी, उन्हां दा कारण नशा सीगा ब्रदर। मतलब कैसे नशा करते थे और कितना कितना नशा कौन कौन सा करते थे ब्रदर? यानी कि जड़े मेरे ब्रदर बड़े ब्रदर सीगे ओ दारू दा ज्यादा नशा कर देंदे, बहुत ज्यादा दारू ही। जदों यानी कि कहने दा मतलब भी 2-3 घंटे दारू ਦਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜੀ। और इसी कारण दोनों की डेथ हो गई? हाँ जी। उसके बाद आपके जीवन में भी नशा शुरू हुआ? हाँ जी ब्रदर, मेरी जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ। फिर आपने कौन कौन सा नशा किया, कैसी मैं हालत थी ब्रदर आपकी? यानी कि बियर शुरू की थी पीनी और दारू शुरू कर दी पीनी जी। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਫਿਕਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ दारू ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਸਕਟ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਸਕਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰੋਬਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ दारू ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मतलब आपके नशे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे? हाँ जी ब्रदर। आप जब विदेश में गए वहां पर हाँ भी जी। नशा किया, फिर 2018 हाँ जी, में हाँ वापस जी, हाँ। इंडिया आ गए आप। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आपके परिवार वाले, आस पड़ोस वाले आपको देखते होंगे नशों में, हाँ फिर जी, क्या हाँ क्या जी। क्या बोलते थे आपको? ब्रदर जी, मैं नशा ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੁਪ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ खुल के नहीं नशा करता सीगा। मतलब आप किसी को मतलब पता नहीं लगने देते थे, मतलब हिडनली आप नशा करते रहते थे? हाँ जी ब्रदर जी। आपके परिवार में किस किस को पता था कि आप नशा करते? मेरे बारे में किसी को नहीं, लेकिन बाद में मेरे परिवार को, मेरे डैडी को पता लग गया सी ब्रदर। उनको पता चल गया था? हाँ जी। और आपने कभी कोशिश करी? मैं कोशिश तो बहुत करता सीगा, पर इस चीज ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, पर नहीं ਛੱਡ पा रहा सीगा। नहीं छोड़ पाते थे तो आपने हाँ जी। मरने की भी कोशिश करी? हाँ जी, मेरे गलत यानी कि दिल दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਥ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ नहीं कोशिश करता ਸੀਗਾ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, पर नहीं ਛੱਡ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। फिर जब इनको अंकुरवलम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा तो 30 सितंबर 2018 को जब ये चर्च में आए, उस समय जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं नशे वालों के लिए प्रार्थना करता हूं,
ऐ नशे की आत्मा, तो मेरी आवाज को जानती और पहचानती है, कम आउट, आउट। मैं तुम्हें डांटता हूं मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते उस फायर को रिलीज करता हूं तुझ पे। ओ नशे की आत्मा, मैं तुझे फायर देता हूं। कैच फायर, कैच फायर। और तू इन लोगों को छोड़। मैं उन नशे की आत्माओं को डांटता हूं आपके परिवारों से। और आपने जब इस सामर्थ्य प्रार्थना को सुना और रिसीव किया अपने लिए, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन ਬ੍ਰਦਰ में? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। मतलब उस दिन से लेके आज कितने साल हो चुके नशा छोड़े? आज मैं यानी कि 5 साल यानी कि 5 साल से ऊपर हो जाएगा। यानी कि मैं स्पेशल दुबई तो गवाही देन और क्रिसमस के लिए आया सीगा ये। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। कितने साल नशा किया आपने लगातार? ब्रदर मैं 10 साल नशा किया यानी। और अभी पिछले 5 सालों से नशों से पूरी तरह से आजाद है। 5 साल तो मैं बिल्कुल फ्री हाँ। जो पापा जी मैनू वर्ल्ड दिंदे यानी कि उन्हां दे वर्ल्डां नू मैं फॉलो करदा और परमेश्वर मैनू आज़ाद करदा जा रहा और परमेश्वर मैनू अपने कम्मां लई भी नाल इस्तेमाल कर रहा। मैं परमेश्वर दा थैंक्स करदा क्योंकि ना तो मैं इस लायक सीगा, मेरे यही वर्ल्ड होंदे ना मैं मेरी इन्नी औकात सीगी। मैं परमेश्वर दा थैंक्स करदा क्योंकि परमेश्वर ने मैनू पाप दे विचों उस नरक दी जिंदगी दे विचों कढ़िया और परमेश्वर ने मैनू चुनिया और मैं परमेश्वर दा रोज़ थैंक्स करदा और मैं बाइबल भी रोज़ पढ़दा हाँ और प्रार्थना भी रोज़ करदा हाँ और परमेश्वर दा वचन जो भी मैं पढ़दा ओह दे जरिए ही रोज़ दी रोटी प्रेयर माउंटेन दे जरिए परमेश्वर रोज़ मेरे नाल गल्लां करदा और जो मैं किसी नू शुभ समाचार दिंदा उहदे जरिए भी परमेश्वर मेरे कोलों अपना काम लै रहा। और जिद्दण दा मैं इत्थे 1 महीने की छुट्टी आया और जो भी मैनू पापा जी ने जिस तरह उस दिन क्रिसमस से कहा जिहदा काम नहीं चलता उहदे लई प्रेयर करो। जिद्दां जिद्दां मैनू पापा जी वर्ल्ड कहंदे मैं जो मैं किसी की दुकान ते जा जो मैनू मिलता मैनू लिफ्ट मिल जाती मैं काम तो जिद्दां जिद्धर नू भी जाना मैं परमेश्वर के कामां लई जांदा उहनां दे लई मैं प्रेयर करदा। वो मैनू उत्थे नहीं वो मैनू अगे भी छड्ड के आउंदे। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा थैंक्स करदा आ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे परमेश्वर की तारीफ करते हुए। हालेलुया। आज जितने भी जन आप में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नशा करते हैं, जो ब्रांचेस में मौजूद हैं या आप फॉरेन में बैठे हैं और आज आप तैयारी के साथ बैठे हैं। आज बर्थडे सेलिब्रेशन मीटिंग है, आज जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है और आज आप बिलीव करें कि आज कड़वाहट का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में और आज आप डिलीवरेंस को छुटकारे को लेके वापस जाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आपने इस भाई की गवाही को अगर ध्यान से सुना, इन्होंने बताया कि 3 भाई थे, 2 बड़े थे, इनसे दोनों की डेथ हो गई नशे के कारण। ये भाई भी नशा करते थे, इनको भी यही लगता था कि इसकी भी डेथ हो जानी है, लेकिन ये बचाए गए। क्यों? क्योंकि इसने फैसला किया कि अपना जीवन प्रभु को देना है और परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना शुरू किया, परमेश्वर के जीवित वचनों के अनुसार चलना शुरू किया। आज ये भाई जीवित है, नशों से बाहर है, डिलीवरेंस पा चुके हैं, गवाही दे रहे हैं। आप आ रहे हैं अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस ब्रदर का नाम जॉयल है और ये जम्मू से हैं। सितंबर 2023 को अचानक से इस भाई को फीवर हो गया था। भाई आप खुद बताएं, जब फीवर हुआ तो कैसी हालत थी, कैसी कंडीशन थी आपकी? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जोएल और मैं जम्मू से हूँ और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी जब मुझे बुखार हुआ था। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो जैसे ही मुझे फीवर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर्स ने चेक किया और मुझे बताया कि आपको फीवर है, लेकिन वो फीवर इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि मैं खुद चल भी नहीं पाता था। और फिर मैं घर चला गया अपने। तो जैसे मैं घर गया मेरी फैमिली मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गई तो उन्होंने बोला, जब उन्होंने टेस्ट किए तो उन्होंने मेरी फैमिली से कहा कि आपके बेटे को डेंगू हो चुका है। तो मेरी फैमिली अंदर से घबरा गई कि हमारे बेटे को डेंगू कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे फिर उन्होंने रेफ़र किया, मुझे इमरजेंसी में लेके चले गए तो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे सीधा कुछ नहीं पूछा कि उन्होंने सीधा पहले मुझे इमरजेंसी में रखा। इमरजेंसी में मेरे टेस्ट हुए,
फिर और बढ़ता गया डेंगू, और एक ऐसा समा आ गया कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने मुझे आईसीयू में एडमिट किया तो मैं पूरा 1 हफ्ता आईसीयू में रह कर आया हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे वहाँ पर रहता था। मेरा टॉयलेट वॉशरूम सब बेड पर था। मेरा जहाँ तक कि मैं जहाँ पर खाता था वहाँ पर ही टॉयलेट वॉशरूम। एकदम मैं क्या बताऊँ कि एकदम मेरी इतनी डिप्रेस लाइफ हो चुकी थी कि फिर क्या हुआ कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया तो डॉक्टर्स कहने लगे कि ये इसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे आइसोलेशन में रखा। फिर आइसोलेशन में रखा तो फिर क्या हुआ, और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। तो डॉक्टर्स ने मुझे हमें घर भेज दिया। तो जैसे हम घर आए, घर आकर भी वही हालात रहे मेरे। मैं बेड पर था, टॉयलेट वॉशरूम पर था, जहाँ तक कि मैं चल भी नहीं पाता था। जैसे मैं चलता था मेरी बॉडी वेट था जो मेरी टांगे उठा नहीं सकती थी। और 2 कदम चलता था बैठ जाता था, 2 कदम चलता था बैठ जाता था। और फिर मेरी फैमिली मुझे फिर से उठाकर उसी बेड पर लेटा देती थी जहाँ से मैं उठकर आया होता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वाइट कार्ड के जरिए मेरा ले हैंड हुआ। हम 15 अक्टूबर को जहाँ पर आए चर्च में, और मम्मा जी के द्वारा मेरी ले हैंड हुई। और जैसे ही मेरी ले हैंड हुई एकदम मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कुछ निकला है मेरे अंदर से। मुझे ऐसे फील हुआ कि भाई अब जो है बस यही है। मैं बता नहीं सकता मुझे क्या फील हुआ, एकदम कुछ निकल कर गया। जब मैं चर्च में आया था, जिस दिन मेरी फैमिली मुझे उठाकर चर्च में लेके आई थी ले हैंड करवाने के लिए, मैं सिर्फ 2 कदम चलता था फिर चेयर पे बैठ जाता था, 2 कदम चला फिर चेयर पे बैठा। और जैसे मैं अंदर गया, मम्मा के द्वारा ले हैंड हुई, अंदर से कुछ निकला। और मैं बता रहा हूं कि आपको कि मैं फिर खुद चलकर कैंटीन में गया, जहां तक कि मैंने जब से मैं बीमार था मैंने एक निवाला तक नहीं खाया था। जैसे मेरी ले हैंड हुई मैं कैंटीन में गया, पेट भर कर मैंने खाया और परमेश्वर ने मुझे एकदम आजाद किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहुत अच्छा, जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन ब्रांचेस जहां भी बैठे हैं, आप जीवंत परमेश्वर की जीवंत हजूरी में जब एंटर होते हैं, खुदावंद की सामर्थ आपको छूती है और नया बल आपकी बॉडी प्राप्त करती है। इस भाई की कंडीशन इतनी खराब थी, जैसे ले हैंड हुआ और उस दिन से वो बीमारी, वो रोग खत्म हुआ और उस दिन से बिल्कुल ये भाई हील हो चुके हैं। एकदम से परमेश्वर ने उस बीमारी से आजाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए, थैंक्स करते हुए खुदा। आइए हम नेक्स्ट गवाही बीरभूम वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अमन सिंह है। इनकी गवाही है कि 10 साल से इनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। एक दिन में इन्हें 3 से 4 बार दौरे पड़ते थे, जिसके कारण इनके हाथ पैर पूरी तरह से मुड़ जाते थे। इनके मुंह से जाग निकलती थी, इनको कोई भी सुध नहीं रहती थी। आज ये ब्रदर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से, और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। इस भाई का नाम अमन सिंह है। ये जब 7 साल के थे तब से इनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, और उसके बाद इनको जब मिर्गी का दौरा पड़ता था तो इनको कोई सुध-बुध नहीं रहता था, ये बेहोश हो जाते थे, इनके मुंह से झाग निकलता था। इस भाई का कहना है कि इनको कोई भी सुध-बुध नहीं रहता था, होश नहीं रहता था, कहीं भी ये गिर जाते थे। और उसके बाद जाकर के काफी डॉक्टर को दिखाए, स्पेशलिस्ट को दिखाए, और आज 10 साल तक ये दवाई खा रहे हैं, दवाई खाते थे। और उसके बाद जाकर के कोई भी आराम इनको नहीं मिलता था। उसके बाद जाकर के इनकी फैमिली को जब खामना चर्च के बारे में मालूम हुआ तो भाई जब से चर्च आने लगे 2023 दिसंबर महीना 10 तारीख को जब ये चर्च में आए थे, तो इन्होंने जब उस प्रार्थना को रिसीव किया था, उसके बाद आज ये 28 दिन के हो चुके हैं। 28 दिन से इनको कोई मिर्गी का दौरा नहीं आता है और ये कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। ये भाई बिल्कुल फ्री है, भी है। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर के दास दासी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी वक्त परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया, और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब 1 मंथ हो चुका है, ये पूरी तरह से आजाद है, इन्हें कोई दौरा नहीं पड़ता। एक दिन में इन्हें 3 से 4 बार दौड़े पड़ते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से फ्री है। 1 मंथ लगातार ये पूरी तरह से हील है। इस बड़ी गवाही के लिए
इस बड़ी टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशरावती है, मैं अमृतसर का रहने वाली हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मैं उन्हें ध्यान लगी है। मेरी गवाही है कि मैंने 20 साल हो गया गठिया था दवाई मैं 20 साल खा दी। मैंने गठिया करके बहुत ज़्यादा दिक्कत आती सी। मैं मतलब इतनी परेशानी, शरीर में सूजन हो गई, दर्दें बहुत ज़्यादा हो गई। फिर घुटने से मेरे ना बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीस खत्म हो गई। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि तानू ऑपरेशन करना पड़ेगा, बगैर ऑपरेशन का तो चल फिर नहीं पाओगे। फिर मैं बेड ते आ गई, मैं सिकंजे ते आ गई। फिर मैं सिकंजे ते सारा लैटरिन बाथरूम जाना, किते भी घर च तुरना फिरना तो सिकंजे दे नाल। फिर किसी ने बेटे ने दसिया 4 चबारे की खामरे ले जाओ। आपने इस गठिया के रोग के कारण आप घर पे फिर कौन संभालता था आपको? कौन टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाता मेरी था? बेटियां आगी सी, वही संभाल दिया सी। और आप शिकंजे के सारे खड़े होते थे, इसके बिना हाँ अपने आप जी। ना तो खड़े हो पाते ना चल पाते थे। नहीं। आप डॉक्टर के पास कितने साल इलाज करवाया जाके आपने? मैं दवाइयां खाती रही 20 साल। मैं दवाइयां दे सिर ते ही काम करती रही। 20 साल दवाइयां खाई हाँ लगातार? जी, हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ा? ना बस दवाइयां दे असर नाल ठीक सी, फिर नहीं उतरे। और पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी? हाँ जी, क्योंकि आपके घुटने दर्द आपके होंदे सी ना। फिर और लगातार दवाइयों से जब कोई फर्क नहीं। यहाँ का कैसे पता चला अंकुर के मेरे बारे में? बेटे ने किसी ने दसिया कि तू खामरे चर्च ले जाओ तो उत्थे तारी मम्मी ठीक हो जाएंगे। और जब ये चर्च में आए तो 10 दिसंबर 2023 की जब बात है, ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। इमरजेंसी सेक्शन अपने हाथों को उठाए, टीम ऑयल को लगाए बीमारों के ऊपर। मैं घुटनों को देख रहा हूं हील होते हुए, जो चल नहीं सकते उन्हें हील होते हुए देख रहा हूं। और जैसे इस बहन ने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आप बताएं उस समय क्या महसूस हुआ आपको जब प्रेयर हुई? तो मैंने बहुत हल्का महसूस हुआ। मेरे शरीर में इतना बाल आ गया कि मैंने सोच नहीं सकती मैं कितनी दौड़ी। मैं कभी नहीं दौड़ी, इतनी दौड़ी मैं। और उसी टाइम ये बहन फटाफट आगे आई अपनी गवाही को देने के लिए। इनकी उस दिन दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। और बॉसल जी, ये बहन को 20 साल से गठिया था, जिसकी वजह से घुटने, इनकी कोहनियां, इनके शोल्डर पूरी तरह से रुक गए थे, जाम हो चुके थे और इस शिकंजे का सारा लेके चलते थे। जैसे अपने प्रार्थना की, इनकी बाजुओं में ताकत आई, इनकी कोहनियां सीधी हुई, शोल्डर सीधे हुए और चल पा रहे। 20 साल पुराने रोग से ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अभी जिंदगी मौत की वादी से निकल जिंदगी मौत की वादी से निकल आई है। तेरी ही वार से हम सब ने शिफा पाई है। जिंदगी क्यों रो रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? मैंने नवा जीवन मिले इसलिए रो। अन्य बीमारियों से मैंने परमेश्वर ने छुटकारा देता। क्या कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के दास के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया, दास का धन्यवाद कर दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने बीमार है कि तुम विश्वास करो तो एड़े तक खड़े रहो, सामने छुटकारा पाना। एक चल के दिखाओ जरा, एक बार उस तरफ चले जरा। तारीफ करें इस बड़ी और जबरदस्त गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ये गवाहियां जो आप सुन रहे हैं ये आम टेस्टमनीज नहीं है। आपने लोगों की लाइफ को देखा है कि उस समय कैसी कंडीशन थी उनकी। 20 साल इस बहन ने उस गठिए के रोग के कारण निकाले हैं, बेड के ऊपर निकाले हैं या शिकंजे के सहारे चलते थे। जैसे खुदा के घर में आए, प्रेयर हुई, आज 20 साल पुराना रोग खत्म। कितने दिन से ठीक है आप अभी?
और मैं ठीक है जिदन से पापा ने मैंने इतने गवाही दी ना पापा ने उदन से मैं ठीक है मैं दवाई खाती सी मैं छाड़ देती हूँ ना अभी खुद ही चलते फिरते सारा काम करते हैं सारे काम कर दिए मैं बेटियां खुश है अभी फिर हाँ जी तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैमसी की मेरा नाम हरमन सिंह है और मैं जिला संगरूर का रहने वाला हूँ। 16 अक्टूबर 2023 को आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी ब्रदर आप खुद बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, खुल के बताएं अपनी गवाही में। ब्रदर जी मैं ड्यूटी तो अपना घर जा रहा सी ते अचानक एक छोटे हाथी जो टेंपो आंदा अपने ते उन्हें ओवरटेक करके मेरे अगे जाके ब्रेक मारे ते मैं पिछों बाइक ते जा रहा सी ते मेरा फेस वो टेंपो की बैक साइड के उत्ते लग गया जाके ते उस दे नाल की होया कि मेरे दोनों चीक्स है इधर गल्ला उन्हां दियां हड्डियां अंदरों फ्रैक्चर हो गई सी ते नक दी हड्डी टुट के टेढ़ी हो गई सी जिस करके साह लैण दे विच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही सी ते पूरे फेस दे उत्ते स्वैलिंग हो गई सी। दैन उस तो बाद फिर उत्थे मैनूं हॉस्पिटल दे विच एडमिट करवाया जो मेरी वाइफ है उन्हां दी ब्रांच दे 2 इंपलॉइज आए ते उन्हां ने मैनूं नीयर बाय हॉस्पिटल है सानेवाल उत्थे एडमिट करवाया। उत्थे वो मेरे नक दे विचों कंटिन्यू ब्लड वही जा रहा सी ते दैन उन्होंने अगे मैनू लुधियाना सिविल हॉस्पिटल दे विच रैफर कर दिता कि तुसीं साडे कोल इत्थे इक्विपमेंट्स नहीं थोड़ी सीटी स्कैन करानी पैनी है तां करके तुहानूं लुधियाना रैफर कर रहे हैं। तो लुधियाना जदों सीटी स्कैन हुई मेरी तो उस तो बाद उत्थे उन्होंने कहा कि साडे कोल माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी का कोई एक्सपर्ट नहीं हैगा तां करके तुहानूं असीं चंडीगढ़ रैफर करांगे ते दैन तुहाडा ट्रीटमेंट होऊगा। तो असी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए सीगे ते उस तो बाद असी ने अपना लुधियाना अपोलो हॉस्पिटल है उत्थे एडमिट होए ते 11 नीयर अबाउट 11 बजे असी एडमिट होए सी ते रात नूं जदों उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ते मैडिसिन वगैरह लाए पेन किलर इंजैक्शनस लगे ते दैन भी मैनू पूरा मतलब 15 घंटे हो चुके सीगे भी ना मैं बेहोश होया ना मैनू कोई अनकॉन्शियस सीगा ते मैनू नींद भी नहीं आ रही सी ते रात नूं भी मैनू मतलब इदां दुष्ट आत्मा दिख रहा सी कि भी मैं तेनों लैके जाऊँगा ऐदां हो रहा सी। एक और ब्रदर जी मैं कहना सी कि अपना जदों मैं बाइक ते जांदा पिया सी ना तां एकदम मेरे कान दे विच आवाज़ आई सी इस चीज़ कि भी लै हुण नहीं बचदा तूं आ काइंड ऑफ के भी मैनू भी मारन वाली स्पिरिट दे तौर ते मेरा एक्सीडेंट होया सी। ते सिमिलरली जदों डॉक्टर्स ने मैनू देखिया ते उन्होंने मैनू कहा कहंदे भी जे हल्का जिहा भी तुहाडे फेस का एंगल चेंज हो जाता तो तुहाडा सिर वजदा टैंपू की बैक साइड के उत्ते तां तुसीं कोमा च भी जा सकते सी। दैन उस तो बाद मेरा सीटी स्कैन वगैरह उन्होंने चैक किया तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरे दोनों साइड्स के उत्ते प्लेट्स पईयां 2 प्लेट्स इस साइड तो 1 प्लेट इस साइड तो सर्जरी तो बाद ब्लीडिंग तो बंद हो चुकी सी नक दी 3 दिन लगातार ब्लीडिंग हो रही सी जो तो उस तो बाद भी मेरे जो फेस की स्वैलिंग सी वो घट नहीं रही सी ते नाल ही मेरे कहते ने स्मैल नहीं आ रही सी क्योंकि डॉक्टर्स तो असीं जो कंसल्ट किया कि भी स्मैल क्यों नहीं आ रही तो उन्होंने कहा कि तुहाडे जो ऑपरेशन के टाइम या फिर इंजरी के करके ना कुछ नर्वस होंदियां ने अपने नक दे विच जिन्हां करके स्मैल आती है तुहानूं भी वो कट गई ने इनू नीयर अबाउट 6 मंथ तो 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं ठीक होने वास्ते स्मैल आने वास्ते तुहानूं। ते दैन असी हॉस्पिटल दे विच एडमिट सी ते मेरी वाइफ ने जूम ले हैंड जो अपने हॉस्पिटल प्रेयर लाइन ते हुंदी है उत्थे रजिस्ट्रेशन करवाई ते 22 अक्तूबर 2023 नूं पापा जी के द्वारा मेरे उपर ले हैंड हुई तो उन्होंने ले हैंड दे विच कहा कि हरमन सिंह जो मेरा नाम है हरमन सिंह तुसी एक्सीडेंट की इस चीज तो हील हो रहे हो। आपका नाम लेके परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी जी ब्रदर जी। वाइफ ने एएनएम हॉस्पिटल प्रे लाइन के ऊपर जब रजिस्ट्रेशन करवाई तो उसके बाद 22 अक्टूबर 2023 को ले हैंड हुआ। उस ले हैंड को भी हम देखते हैं पहले। यीशु मसीह के नाम में अपनी अपनी हीलिंग को रिसीव करो। हरमन सिंह तुम हील हो रहे हो एक्सीडेंट की इस चीज से। बी हील्ड इन जीसस नेम। आप बताएं भाई जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आप कहां पे मौजूद थे उस टाइम? मैं उस टाइम हॉस्पिटल में ही था मेरी सर्जरी हो गई थी बट अभी तक एडमिट थे हम हॉस्पिटल में ही। तो जैसे ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद एकदम से मुझे मेरी मतलब फेस के ऊपर सेंसेशन फील हुई गर्माहट फील हुई
और इमिडिएटली जब डॉक्टर हमें बोल रहा था कि 1 वीक लगेगा आपको अभी डिस्चार्ज होने में, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन था अभी भी, बट उसके 2 दिन बाद ही हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और स्वेलिंग भी कम होने लग गई और इमीडिएटली मुझे स्मेल आना भी स्टार्ट हो गया था उसके बाद। और 2 महीने हो चुके हैं, आप बिल्कुल हील है अभी। जी ब्रदर जी, तारीफ करें परमेश्वर के जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि एक्सीडेंट के दौरान आपकी जो नसें हैं, जो नोज के अंदर जो स्मेल करती हैं, वो दब चुकी है या कट चुकी है, कट चुकी है। हाँ जी। आप सांस भी मुंह से ले पाते थे। जी ब्रदर। और अभी आपका जो नोज है, जो नाक है, वो बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। हाँ जी ब्रदर। एक्चुअली एक ना इसमें मेरे दांत टूट गए थे, तो जबड़ा हिल गया था ना, तो उन्होंने दोनों दांतों को ऐसे बंद करके वायर्स लगाई हुई थी चेहरे मतलब मुंह में, तो उसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि नाक से तो पहले ही नहीं सांस आ रही थी और मुंह बंद था, तो उसकी वजह से भी नहीं आ रही थी सांस। और खाने में भी सिर्फ लिक्विड ही कंज्यूम कर सकता था मैं, और वो भी स्ट्रॉ के साथ, कि जैसे सूप पी लिया, जूस पी लिया या दूध पी लिया, बस वो भी स्ट्रॉ के साथ ही पी सकते थे, ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते थे उसको। और उस लेहन के बाद अभी 2 महीने से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जी ब्रदर। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम गुरसेवक है। इनकी गवाही है कि 17 साल से ये भाई नशा करते थे। ये भाई धीरे धीरे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहने लगे। पूरी तरह से इनकी लाइफ इन नशों के कारण, व्यभिचार के कारण पूरी तरह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये ब्रदर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबने जब सीधी मेरा नाम गुरसेवक है, मैं अमृतसर ब्रांच तो अपनी टेस्टमनी जीवन दी गवाही देन जा रहा हूं। मैं ड्रिंक करता सी 13 साल दी उम्र तो मैं ड्रिंक करता सी। जब मैं ड्रिंक करता सी, ड्रिंक के नाल मैं गुटखे भी खाना और तंबाकू भी खाना शुरू कर देता सी। मैं उस नशे के द्वारा मैं विचार और गलत मूवियाँ देखना भी शुरू कर देता सी। मेरी वाइफ जब मेरी मैरिज नहीं हुई सी तब भी मैं ड्रिंक करता सी, नशे करता सी। जब मेरी वाइफ मेरी मैरिज हो गई, उस मैरिज तो बाद ही मेरे व्यभिचार के अटैक नहीं खत्म हुए। मैं अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी। जब मैंने मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने मैंने चर्च पर अंकुल ने इसके बारे दसिया, तो जो परमेश्वर के दास नशा वास्ते प्रार्थना करते सी, तो मैं उस वर्ल्ड में रिसीव किया। इस नशा तो अज मैं पूरी तरह आजाद हाँ। अज तो मेरी लाइफ, मेरी मैरिज लाइफ भी पूरी तरह ब्लेस है। तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 22 नवंबर 2018 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही ये भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ। इनकी बॉडी में उसी समय गर्माहट महसूस हुई। प्रार्थना के बाद ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 6 साल हो चुके हैं, अब कोई नशा नहीं करते, कोई नशे की तलब नहीं लगती। ये भाई पवित्रताई में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? वीरो। कहां से हैं आप? होशियारपुर तारागढ़ तो। 6 महीने पहले आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ जी ब्रदर। सिस्टर आप खुद बताएं कैसी कंडीशन थी उस समय, आप कैसे हालात थे आप? सर मेरे बहुत माड़े हालात सी क्योंकि मैनू घर कोई पानी देने वाला नहीं। मेरा बेटा भी काम ते चल जाता सी, मेरे हस्बैंड भी, ते मैं ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे थोड़ा काम करती, तुरदी सी ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, मैं ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। पर मैं प्रभु ते विश्वास रख के पैरालाइज होंदे बावजूद भी मैं चर्च विच मौजूद रहिंदी सी। हर ऐतवार, हर वीरवार मैनू परमेश्वर ते विश्वास सी। और उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे पहले? हाँ जी जी सर। और खाना पीना वो आपका परिवार, आपका बेटा, आपके हस्बैंड आपको उस समय देख रहे थे? हाँ जी सर। कितने डॉक्टर बदले आपने? 4। और हालत जो थी मेडिसिन ट्रीटमेंट के बावजूद भी खराब होती जा रही हाँ थी? जी सर, मेरे को पैरों ते भार नहीं होता, मैं थल्ले डिग पैंदी सी। और आप रोते रहते थे? हाँ जी सर। परिवार फैमिली भी आपको देख के परेशान थे कि? हाँ जी सर। हाँ जी सर। मेरा बाथरूम भी बीच निकल जाते, मेरे कपड़े भी मेरा बच्चा ही बदलता सी, नवाउंदा भी मैनू वही सी।
आपका बेटा ही आपकी केयर कर रहा था। हाँ जी सर। टॉयलेट, वॉशरूम, नहाना, खाना हाँ जी, पीना। हाँ जी, मेरा बच्चा ही दिंदा सी। और इनकी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावन आप मुझे चंगा करेंगे, कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी प्रभु, तुझ में सदा बनी रहूंगी, हालत कैसे भी क्यों ना हो। ये लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। 10 दिसंबर 2023 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड करने के लिए चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जिनकी टांगे नहीं चलती अपनी टांगों पे हाथ रखें। जिनकी टांगे नहीं चलती अपनी टांगों पे हाथ रखें। पीठ में प्रॉब्लम है, पीठ पे हाथ रखें। सिर में बीमारी है, हाथ रखें। चंगे हो जा। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। और उस दिन ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। बहन, जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या महसूस किया था? ब्रदर, ठंडे महसूस हुई। मेरे एकदम दर्द हट गई, मेरी लत इदा इदा करना होने लग पई, अगे इदा हुंदी नहीं सी। और आपने बिना सहारे के अपने आप को खुद चल के चेक किया? हाँ जी, मैं आप तुर के आई। और आप चल पा रहे थे? हाँ जी। आप चलिए, चलिए आप सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च, जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया और बिना सहारे के शिकंजा छोड़ के इन्होंने खुद चलना शुरू किया। और उस दिन उसी समय ये आगे भी आए थे अपनी गवाही देने के लिए। आइए देखते हैं उस गवाही को भी। पर्सनली बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और कहते राइट साइड रुकी थी और शिकंजे के सहारे चलते थे। और आज जैसी प्रेयर हुई, प्रभु ने छुआ है और ये बहन बिना शिकंजे के चल पा रही है। तेरी ही वफा। और सिस्टर, उस दिन से प्रार्थना के बाद से बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं, मेरी लत जुंदी, मैं आराम ना सौनी और लत्तां तां करदी हैं, अपने कपड़े आप पाउने। कितने दिन से? बिल्कुल महीना हो गया जिद्दन दी प्रेयर हुई। घर का काम खुद करते हैं, सब कुछ आप खुद करते हैं। हाँ जी, ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च, हाथों को उठाते हुए सब जन थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हैं सब। आज भी अगर आप बीमार हैं, परेशानियों में, दुखों में हैं, ये बवा, ये बीमारियां, अगर आप खुदा की हजूरी में हैं, कोई मायने नहीं रखती। वो परमेश्वर आपको हील करेगा, वो आपको चंगा करेगा। आप भी झूमते हुए, नाचते हुए खुदावंद की महिमा करेंगे। वो आपको ऐसा रहने नहीं देगा, आपके हालात बदलेगा वो खुदा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही पतूली कोलकाता चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम संपत्ति मंडल है। इनकी गवाही की जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो ये बहन व्यभिचार और नशा करते थे। ये नशा, ये व्यभिचार इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ये सिस्टर वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम समाप्ति मंडल है और ये कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। इस बहन की ये गवाही है कि 13 साल की उम्र में गलत संगति में जाके बहन पाप में और व्यभिचार में चले गए थे। ये रात भर जगकर गलत मूवीज देखा करते थे और इनके ये जब दूसरे पर्सन को देखते थे, इनके मन में बहुत ज्यादा गलत विचार, गंदे सोच आते थे। और ये बहन सारा टाइम सोशल मीडिया में एक्टिव रहा करते थे और ये बहन बहुत ज्यादा गंदी गाली भी निकाला करती थी। और डे बाय डे इनकी पाप इतना बढ़ता गया कि ये बहन नशे में भी चले गए। ये बहन एक दिन में 50 ml तक शराब का नशा कर लेते थे और इस सिगरेट का भी नशा करते थे। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बहन डिप्रेशन में भी चले गए थे। और इस डिप्रेशन के कारण इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार फांसी लगाकर इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और दूसरे बार इन्होंने हाथ में कट लगाया और अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की। और ये बहन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में चले गए थे कि इनको लगता था कि अपने आप को खत्म ही कर दे तो अच्छा है। और इनकी डिप्रेशन डे बाय डे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था इनको। और फिर इनकी इस खराब हालत को देख के इनकी बहन ने अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये लगातार ऑनलाइन में मीटिंग को अटेंड करते रहे। और ये जब पहली बार जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, इनको बहुत शांति महसूस हुई। इन जब टेस्टिमनी को देखा, इनके मन में बहुत ज्यादा फेथ बढ़ा कि परमेश्वर इनको भी आजाद करेंगे।
फिर एक दिन जब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उसी दौरान परमेश्वर के दास ने जब व्यभिचार की आत्मा के लिए जब मास प्रेयर को किया, इन्होंने पूरी फेथ के साथ, पूरी बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। फिर इनकी शरीर में एक हल्कापन सा महसूस हुआ। उसके बाद इन्होंने जब खुद को चेक करके देखा, ये पूरी तरह से हील थे, पूरी तरह से आजाद थे। इनको कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर की, इनको शिफा दी। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 8 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को ऑनलाइन बैठकर रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय इन्हें टच किया, इन्हें छुआ। इनको एकदम से एक अलग सी शांति महसूस हुई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब ये गलत संगति में नहीं है, कोई नशे नहीं करते, कोई पाप नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई इन्हें सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, कोई डिप्रेशन नहीं है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इन्हें टच करके परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि ऑनलाइन बैठ के इन्होंने रिसीव किया। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? सुखदेव राज। कहाँ के रहने वाले आप? नवा शहर लंगड़ोआ से। ये गवाही इनकी बेटी की है, वो फॉरेन जाना चाहते थे क्या? कैसे फिर परमेश्वर ने आपके और आपकी बेटी की जिंदगी में काम किया? परमेश्वर की दासी के जब बीजों के बारे में वो बताते थे, जैसे ही हम अपनी गड्डी में से भी आप बीजों को बोझते थे, वैसे ही परमेश्वर ने हमको डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में दिया, रिलीज दिया। ऐसे ही हमारी बेटी का 2 साल से उसकी चॉइस थी कनाडा जाने की। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमारे लिए डिवाइन हेल्पर किया। आज 3 तारीख को परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी बेटी कनाडा जा चुकी है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ये भाई जो इनके साथ में आप खुद बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप? जी मैं लिंकन जॉन, मैं दुबई से आया हूँ। क्या काम किया परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में? जी दरअसल 2019 में जब मैं दुबई गया था, तब एक्चुअली मैं मेरा पासपोर्ट मेरे जेब में रखकर एक्चुअली शारजा से दुबई ट्रैवल कर रहा था। तो उस वक्त मेरा पासपोर्ट खो गया था और फिर उसके बाद हमने पूरे एरियाज़ में जैसे ऑफिस, घर और सब जगह पर ये पासपोर्ट जो खो गया था ये हमने तलाश किया, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। पुलिस में भी कंप्लेन किया, लेकिन कुछ भी हल नहीं मिल रहा था और हफ्तों तक बहुत परेशानी में था, क्योंकि तब तक ऐसा एक एमिरेट्स आईडी होता है अपने आधार कार्ड की तरह, ये भी मेरा बना नहीं था। तो फॉरेन कंट्री में बिना आपके कोई आइडेंटिटी के, बिना पासपोर्ट के बहुत मुश्किल होती है और पुलिस भी आपको किसी वजह से आपको अरेस्ट भी कर सकते अगर आप प्रूव नहीं कर पाए आप कौन है। तो ऐसे हालत में था। तो तब एक बार मैं यूट्यूब पे अपोस्टल क्रोनोलॉजी का मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आपने खोया है वो आपको परमेश्वर अभी की अभी परमेश्वर आपको लौटा देगा। और उसी वक्त जो है परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक जगह के लिए प्रेरित किया जहाँ पर जाने के लिए, और उस वक्त जब मैं जाकर उस बैग को मैंने खोला, उसी के अंदर ये मेरा पुराना खोया हुआ पासपोर्ट मुझे मिला, वैसे के वैसे ही, बिना किसी उस दाग धब्बे के या बिना किसी चीज के वो पासपोर्ट मुझे मिला। थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? दिलप्रीत सिंह जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं ब्रदर सिंगापुर तो, बट होने थे जलंधर तो ही लोकल जी। 2019 से आप सिंगापुर में रह रहे थे? हाँ जी। क्या आपकी जिंदगी में काम हुआ, आप खुद बताएं। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮੰਥ 'ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ USA ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ सीट ਨੂੰ ਆਪਣੇ BC ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। जो आपने पहले USA का अप्लाई किया था लेकिन वो रिफ्यूजल लगा था। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद नवंबर 2023 में आपने दोनों हस्बैंड वाइफ ने कनाडा का वीजा अप्लाई किया। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 2024 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਵੋ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਉਠਾਓ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ 1 ਸਾਲ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਡੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जब परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, आप सेवा करते हैं और आप बीज बोने वाले हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हैं, तो आप 200% श्योर है कि आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे और आप भी आ रहे हैं पुलपिट के ऊपर अपनी बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज है हमारे पास। दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर उर्वशी की गवाही हमारे पास इनकी बेटी की है कि 1 साल से वो इंग्लैंड में है और जो इनकी बेटी जॉब कर रही थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं थी और जिसकी वजह से 15 से 20 जगह पर और लगातार 4 महीने तक न्यू जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए, लेकिन कोई भी रिस्पांस कहीं से नहीं मिलता था, रिजेक्शन ही मिलती थी। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फिर जब अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े तो जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने गाइड किया कि आपने लगातार बीजों को बोना है, तो वफादारी के साथ बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी बेटी के जीवन में काम किया और इनकी जो जॉब थी उसको ब्लेस किया। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने फाइनेंशियली इंक्रीज किया। और इस तरह से यूपी ब्रांच से ब्रदर कुलवंत की टेस्टमनी है कि 4 साल पहले 3.5 लाख रुपए का लोन लिया था, वापस नहीं कर पाए। लोन की जो अमाउंट थी वो 5 लाख से भी अधिक हो चुकी थी। कंपनी ने इनके ऊपर केस भी कर दिया था, बहुत बार पुलिस ने भी इनसे बात की, लेकिन ये मतलब पैसा इनके पास होते हुए भी ये उन चीज़ों को नहीं कर पाते थे क्योंकि फिजूल खर्ची में ऐसी चीज़ों में इनका पैसा यूज़ हो जाता था। जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया और लोन भी इनका उतर चुका है। डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में रिलीज़ किया और ये कर्जे से भी भाई पूरी तरह से आज़ाद हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। इसी तरह से सिस्टर गगनदीप कौर मानसा चर्च ब्रांच से इनकी गवाही है कि ये इनके बहन की टेस्टमनी है कि पिछले 1 साल से विदेश जाना चाहते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी थे। बीजों को बोना शुरू किया और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी कि परमेश्वर आपकी फाइल्स को, आपकी फ़ोटो को, आपके परिवार के मेंबर्स को आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे हैं, प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ, वर्क परमिट वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। और मलेशिया ब्रांच से ब्रदर अंजुम सलीम की टेस्टमनी है हमारे पास के इस ब्रदर की गवाही है कि 2017 में ये मलेशिया में आए थे और रेस्टोरेंट में एज ए वर्कर जॉब करते थे, सफाई करते थे, बर्तन साफ करते थे। सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी और एक दिन ये भाई यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे तो अचानक से अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज की एक मीटिंग का लिंक इनके सामने आया। मीटिंग को देखना शुरू किया, वचनों को सुना और उसके बाद लगातार इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, बीजों को बोना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने डिवाइन अरेंजमेंट इनकी जिंदगी में किया, इनके बंद रास्तों को ओपन किया और उसी रेस्टोरेंट में परमेश्वर ने एक ऊंची पदवी के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी पहले से कई गुना ज़्यादा करके परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें ब्लेसिंग के लिए। और सिस्टर रीटा कंवल की टेस्टमनी थाईलैंड ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा। ये गवाही इनके बेटे की है। 6 महीने से इनका बेटा थाईलैंड में अपनी उनकी हार्ट डिजायर थी, वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन जो 3-4 जगह इंटरव्यू दिए, 6 मंथ हो चुके थे, लेकिन कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिजेक्शन ही मिलती थी, हर बार रिस्पॉन्स नहीं कई बार आता था। और जब बीजों को बोया, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके बेटे की हार्ट डिजायर के अनुसार इनके बेटे को अकाउंट्स की जॉब के साथ ब्लेस किया है, अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। और इसी तरह से अहमदनगर महाराष्ट्र ब्रांच से टेस्टमनी ब्रदर रमेश की है। इनकी गवाही है कि 2.5 साल से ये भाई गवर्नमेंट रिकवरी ऑफिसर की जॉब कर रहे थे और 2.5 साल से इनकी जो प्रमोशन थी वो नहीं हो पा रही थी और जब भी ये भाई एग्ज़ाम देते थे तो इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और पहले से ही ये अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में इनको ब्लेसिंग दी, इनकी उसी जॉब में परमेश्वर ने इनको प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इसके जीवित नाम को। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्गरेट है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जालंधर की रहने वाली हूँ। क्या काम किया परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में? मैं 8 साल से फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रही थी, बट फिर मैंने जब कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए फाइल लगाई तो मेरी रिफ्यूज़ल आ गई। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक ट्राई करती रही, अदर कंट्रीज़ के लिए भी ट्राई किया, मैंने यूके के लिए ट्राई किया, यूरोप के लिए ट्राई किया,
बट मेरा कहीं का भी कोई भी काम नहीं बन रहा था। उसके बाद मेरे ब्रदर पापा जी से मिले थे, उन्होंने वर्ड दिए थे कि इसकी फ़ाइल सिर्फ कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए लगानी है और किसी कंट्री के लिए नहीं लगानी। तो वैसे ही हमने उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और हमने कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए फ़ाइल लगाई और परमेश्वर ने मुझे 3 साल के कनाडा के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये कपूरथला ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम डिंपल है। इनकी गवाही है कि ये बहन 20 नवंबर 2023 को अपनी एक्टिवा पर अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पे जा रहे थे और एकदम से इनको पीछे से ट्रैक्टर ने हिट किया, जिसकी वजह से इनकी एक्टिवा बहुत जोर से टकराई और ये सिस्टर उसी टाइम पे बेहोश हो गए। और आज ये सिस्टर हमारे साथ उस ब्रांच के साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, डिलीवर किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਟਿੰਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਜਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜੌ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਚਿਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟ ਪਈ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ANM ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂक्स करती हूं और सारा नु जय। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो सबसे पहले हम उस जूम ले हैंड को देखेंगे जो परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर किया। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो भी इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हैं वो हालात बदलते तुम सब प्रार्थनाओं के नीचे हो, प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स के नीचे हो, ग्रेस के नीचे हो, हीलिंग के नीचे हो। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। और आज 1 महीना 13 दिन हो चुके हैं, ये बहन टोटली हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर जी सबिया। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। पिछले 5 साल से बहन आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर जी। आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी तो क्या होता था आपके साथ? ब्रदर जी मैनू ना रात ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। और दबाव, आपको दबाव इस तरह से पड़ते थे कि 20-20 मिनट तक आवाज नहीं खुलती थी। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। डर लगता था, अकेले कहीं जा नहीं पाते थे आप? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था आपके साथ। सुबह जब आप उठते थे तो बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी रहती थी। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਮਾਰੀ। और आप ये बताएं कि अटैक बढ़ रहे थे, हालात आपके डे बाय डे खराब हो रहे थे, घर में कैसा माहौल था? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। और फिर आपके मन में सुसाइडल थॉट भी आते थे? ਹਾਂਜੀ आप क्यों मरना चाहते थे? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ फैमिली बहुत अच्छी है। और बहन, फिर अटैक बढ़ने के साथ साथ आप बीमार रहने लग गए? हाँ जी ब्रदर जी, मैनू ना मतलब कि थायराइड हो गया। उस तो बाद मैं मतलब कि जो मेडिसिन खानी नहीं है ना, तो फिर ही मेरा शरीर चल रहा है। उस तो बाद हुण मैं ठीक हाँ। बहुत सारे डॉक्टर भी बदले गए मगर कोई आराम नहीं था उस समय? हाँ जी ब्रदर जी। और बहन, फिर चर्च के साथ कैसे आप चर्च में आए, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आप खुद बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੇ ਦੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦਬਾਅ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। हाँ जी। और इस तरह आपका विश्वास बढ़ता गया? हाँ जी ब्रदर जी। और फिर आप चर्च में आए? हाँ जी, फिर मेरे मतलब के देर ने मेरा फॉर्म है मतलब के भरवाया ले हैंड दा। ले हैंड फॉर्म उन्होंने आपका फिल किया था? हाँ जी। जब इनका ले हैंड फॉर्म फिल हुआ तो 14 दिसंबर 2023 को स्पिरिचुअली फीस्ट संडे थर्सडे मीटिंग में वीक 1 में ये बहन चर्च में आए और उस दिन स्पिरिचुअल फादर के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तुम जल्दी गवाही दोगी इन जीसस ने। यस आमीन। इसका कार्ड कहाँ है वो पर्चा? ओके, बहन के पास ले जाओ इसकी। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हाथ रखा दुष्ट आत्मा जाहिर हुई। उन्होंने फिर इस बहन को ऑफिस में बुलाकर इन्हें डिलीवरेंस इनको हील किया, चंगा किया। और उसी समय बहन आप ये बताएं, जैसे परमेश्वर के दास ने आपको अंदर बुलाया, ऑफिस में बुला के प्रार्थना की, क्या हुआ था उस समय? ब्रदर जी, फिर जब मैं अंदर गई ना एकदम मैं पापा जी ने देख के फिर मैं डेग गई तो एकदम मेरे को पापा जी ने मेरे सिर ऊपर हाथ रखता ते इतना फील होया कि जिस समय को मतलब कि दुष्ट आत्मा निकल के चली गई आ ते फिर मैं चंगी हो गई। उसी समय आप बिल्कुल हील हो चुके थे? हाँ जी, फ्री हो गई फिर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस छुटकारे के लिए, क्योंकि जब सामर्थ्य स्पर्श आपको मिलता है, खुदावंत की सामर्थ्य आपको टच करती है तो परमेश्वर आपको हील करता है, चंगा करता है। सब दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां निकल जाती है बॉडी में। उसी समय प्रार्थना के बाद इनके साथ टीम ने बातचीत की, आइए उसे भी हम देखते हैं। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਧਰਲੀ ਹਟ ਗਿਆ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਬੀਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੋ ਮਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਧਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਹੁਣ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ? ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ 2018 ਚ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਮਨ 'ਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਅੰਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 3 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। 3 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन ब्रांच में जहां भी हैं आप, खुदाबंद के नाम को महिमा दे, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है, जो आपको चंगा करता है, आपको हील करता है। और सिस्टर आप बताएं, आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे? हाँ जी ब्रदर जी। प्रार्थना के बाद से अब तक कैसी लाइफ है? हाँ जी बहुत वधिया लाइफ हुण चल रही है साडी। 2018 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ। कोई अटैक नहीं होता है? हाँ जी कोई अटैक नहीं होती, कोई खेल नहीं होती। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं 3 टाइम प्रार्थना भी करती हाँ, फास्ट भी रखती हाँ। मैंने तो कभी फास्ट जिंदगी च रखा नहीं। सिस्टर आप दूसरों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं बीमारियों के नीचे, दुष्ट आत्माओं के नीचे, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हाँ जी ब्रदर जी मैं कहना चाहनी कि जिस तरह मैनू परमेश्वर ने ठीक किया सारे ठीक करे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया बोलते हाथों को उठाते हुए चर्च धन्यवाद देते हुए सब आइए हम नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम किशन लाल है। इनकी गवाही है कि 3 सालों से इनको कानों का रोग हो गया था, जिनके कारण इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन का सजेस्ट किया था, इनको कानों के लिए मशीन लगा थी, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये ब्रदर पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਏਅਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ
ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 26/11/2023 ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ बहरी गूंगी आत्मा तो बिल्कुल फ्री है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 26 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इनको एकदम से इनके कानों में गर्माहट महसूस हुई और टक टक की इन्हें आवाजें आनी शुरू हुई और उसी दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें उस शर्मिंदगी से आजाद किया, ऑपरेशन कैंसिल किया और इस भाई को हील किया है। सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? काजल। कहाँ के रहने वाले? बटाला से। 2016 से आप फैमिली में आपके हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता। आप खुद बताएं आपकी फैमिली में क्या चीजें चलती थी? ब्रदर जी ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਚ ਫੜ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਚ ਤੋੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵੜਦੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਬੀਅਰ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਚਲ ਜਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਰਾਂਗੀ, मेरा दिल खत्म कर दे। कि मतलब मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी सी। और आप नशा जब आपने करना शुरू किया उसके बाद आपके दिल में मरने के, सुसाइड करने के ख्याल चलते रहते थे? हाँ जी ब्रदर जी, मैं मतलब इट्टा मारदी हुंदी सी अपने सिर दे विच, मैं पूरी मतलब इदा फड़नी डायरेक्ट इत्थे मारदी रहना कंटिन्यू। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आपको डिलीवरेंस मिली इन चीजों से? पापा जी दा क्रूसड होया सी 2017 दे विच गुरदासपुर दे विच, और उत्थे मैं किसी सिस्टर को पानी लैन गई सी पीण वास्ते और मैनू सिस्टर कहंदे तुसीं कदी खांबरा गए हो, उत्थे एडे वड्डे काम हुंदे आ। और ब्रदर मैं अपनी फैमिली दे छुटकारे लई 2018 5वें महीने दी 6 तरीक ते चर्च आई सी। ठीक आ। और मैं कदी बाहर निकली नहीं सी, मतलब फैमिली ने कदी रोकिया नहीं, बट मैं कदी आई गई नहीं सी किते। मैं एक दो जाने ने बोला मैनू चर्च लैके जलंधर लैके जाओ चर्च। ठीक आ। किसी ने खड़िया नहीं। और उस क्रूसड दे विच पापा जी मैनू प्रेयर नहीं सी करनी आंदी हुंदी। ठीक आ। पापा जी ने ना प्रे की सी कि तू मेरा बल आ परमेश्वर, तू मेरा गुरूर, तू मेरा घमंड आ। उस तो बाद मैं एक दिन चर्च जाने निकली, मैनू छड्ड गए, मैं घरे आके बहुत रोई, मैनू प्रेयर नहीं सी करनी आंदी। आप जब चर्च में आए, जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? उस तो बाद परमेश्वर जो पापा जी ने वर्ड दिते ना कि यूथ तुसी अपनी लाइफ नू लेके सीरीयस होवो। मैं वो कुड़ी सी जिहड़ी अपने आप नू फालतू समझदी सी, बेकार समझदी सी कि जिवें मैनू लोग रिजेक्ट करदे आ। लेकिन परमेश्वर दे दास दे द्वारा मैनू एहसास होया कि मैं प्रभु विच बहुत खास हाँ। मतलब परमेश्वर दे दास दे द्वारा मैनू पता लगा कि मैं कितनी खास हाँ, मैं कितनी स्पैशल हाँ, चाहे लोगों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने खुदा लिए बहुत खास हाँ। और मैं पर पापा जी का टैंक मतलब लखां वारी भी धन्नवाद करा भी घट आ। इन्ने ज्यादा मैं मम्मा जी बोलते ना कि पापा जी तो बहुत बड़े फैन है, तुसी भी हो। मैं मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं पापा जी की कितना बड़ी फैन हाँ, और मैं पापा जी का मतलब दस नहीं सकती कि मैं कितनी बारी उन्होंने धन्यवाद करा।
और कोई नशा आपके जीवन में नहीं है, नहीं कोई brother जी, ਅੱਜ व्यभिचार, ਮੈਂ कोई free ਹਾਂ। पाप आपके जीवन में नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਲਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਘਰੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਦੀ, ਕਾਤੋਂ ਰੋਣ ਦੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ, बट मैं कभी चर्च नहीं सीखे, इतनी ज्यादा मैं नफरत करती सी परमेश्वर नु। और अभी आप पूरी तरह से डिलीवर हैं और बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए जोर से हालेलुया। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है और मैं मलसिया शाहकोट के रहने वाली हूँ। नवंबर 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। खुद बताएं आपकी हालत कैसी थी, क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरी मैरिज को 3 साल हो गए थे, लेकिन हम जब बेबी की ट्राई कर रहे थे तो मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा होता था कि मेरे कब बेबी कब होगा। लोगों को देखकर मेरा ऐसे मन करता था कि मेरा बेबी, मुझे भी बेबी चाहिए, मुझे कब बेबी होगा। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब मेरे बेबी नहीं हुआ तो हमने डॉक्टर को दिखाया। 1 साल के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाना शुरू हुए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पीरियड इरेगुलर थे। मेरे एग साइज नहीं बनते थे, मेरा एग 3-4 गुना बड़ा होना चाहिए था लेकिन बहुत छोटा, और मेरा यूट्रस कमज़ोर हो गया था। और इसी तरह हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, 3-4 डॉक्टर के पास गए, लेकिन मुझे किसी भी डॉक्टर के पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं मिली कि जिससे मुझे बेबी कंसीव हो। जैसे लोगों ने किया हमने वैसा ही किया। लोगों ने बोला कि आप देसी दवाई खा लो, आप इंग्लिश दवाई खा लो। हमने जैसे भी मुझे बोलते थे मैं वैसा ही करती थी। बहुत सारी डॉक्टरों के पास गए हम। जब हम लोगों के कहने पर अन्य जगह पर भी गए, वहां पर भी जाने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के पास आपका एक बार मिसकैरेज भी हो चुका था जी, और 4 साल मैरिज के हो चुके थे, लेकिन जब भी रिश्तेदार पूछते थे कि मैरिज को इतने साल हो गए, बेबी नहीं, फिर क्या बोलते थे और क्या आप सोचते थे उस समय? रिश्तेदार, मैं 2nd फ्लोर पर रहती हूँ अपने घर पे। रिश्तेदार जब आते थे तो नीचे से ही मुड़ जाते थे, नीचे से ही वापस चले जाते थे, मुझे कोई नहीं मिलकर जाता था। तो मैं बहुत दुखी परेशान रहती थी। मेरे मम्मी पापा ही मुझसे मिलने आते थे। रिश्तेदार तो ऐसा करते थे कि कोई मेरे पास ही नहीं आता था, बोलते थे इससे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने और आपके हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि IVF करवाना है अभी? जी, जब 3 साल हो गए तो मुझे लगा कि मुझे बेबी कंसीव नहीं होगा। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, मैंने देसी दवाई खाई। डॉक्टर ने मुझे बेबी कंसीव करने के लिए भी दवाई दी कि आप ये खाओ। मैंने 3 साल लगातार मेडिसिन खाई और हर मंथ में अपना प्रेगनेंस टेस्ट चेक करती थी कि मुझे, लेकिन मेरा कभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही नहीं आया था। आपको फिर यहाँ का अंकुनुलम निश्चित के बारे में कैसे पता चला? वैसे तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं परमेश्वर पर मैं ऐसे भरोसा नहीं करती थी। मैं सोचती थी नहीं तो ये तो सब झूठ होता है, ऐसे नहीं विश्वास करना चाहिए। आप बिलीव नहीं करते थे पहले? जी, मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरे पति क्रिश्चियन है। कोई बात नहीं। कोई परमेश्वर किसी जात धर्म को चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन को चेंज करने के लिए आया। जी, और मुझे आपके वचन के द्वारा पड़ोसियों ने आपको अंकुरुलम निश्चित के बारे में बताया, और जब आपने फिर चर्च में आना शुरू किया तो 27 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो बाय फेथ इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपके जीवन में फिर? जब हम वाइट कपड़ों वाली मीटिंग थी तब हम यहाँ पर मैं आई। मैं 1 महीना ही चर्च आई और 16/10/2022 को मैं आई थी, और उसके बाद 27 तारीख को यहाँ पर मीटिंग हुई। वो प्रेयर, वो पापा जी ने बोला कि गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो 27 तारीख के बाद जब मैं 16/10 से और 16/11 को मैंने अपना टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। मतलब जिस दिन प्रेयर हुई उसके 1 महीने के अंदर टेस्ट पॉजिटिव था आपका? जी, 1 और जब पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा क्या रिएक्शन था आपका फिर? अभी मैं तो ब्रदर इतना ज्यादा खुश हो गई, मैं उसी टाइम अपने घुटनों पर आई और मैं
बता ही नहीं सकती कि मुझे शर्मिंदगी होती थी, परमेश्वर ने मेरी सारी शर्मिंदगी दूर की। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा मुझे पता चला कि सचमुच परमेश्वर धर्म नहीं बदलते बल्कि जीवन बदलते हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करो और परमेश्वर की महिमा करो, उसके वचनों के द्वारा चलो। और परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया। जी, मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें हर इंसान।